Be fast. Put your presenting in the chat box, all of you. Only Nidhi and Mansi have put their presenting. What about the other four students? Please put your presenting fast. सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये प्रेझेंटी लावायची आहे. तुमचं नाव लिहून स्टँडर्ड लिहायचं आहे. Please put your presenty in the chat box. Still two more students are remaining. Parth Chaudhary. Are you the new student? Yes. Okay. This is your first class. Okay. Yes, students, we have started in the previous lecture our civics lesson number 2, that is the Indian Parliament. Okay, the Indian Parliament ये lesson हमने last time start किया है. So let's revise whatever we have completed. Okay, whatever part we have completed, let's revise that. Yes, the ID Sama Patil and Om Mude still did not have put their presentee. Please put your presentee. See, what we have learned in the last lecture, that the Constitution of India has created the Parliament of India. Okay, भारत की जो संसद है वो किसने निर्माण की है? कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने निर्माण की है. ओके, then the legislature at the national level, that is the level of the central government, is called the parliament. आपल्या राष्ट्रीय पातळीवरचं केंद्र शासन, ओके, त्याच्या कायदेमंडळाला आपण संसद असं म्हणतो, पार्लमेंट असं म्हणतो. Then we have learned about Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, we have learned about Lok Sabha. Yes, so can anyone explain about Lok Sabha? Can anyone tell me about Lok Sabha? Yes, Mansi? Yes, ma'am. The Lok Sabha, the lower and the first house of the parliament is the Lok Sabha. The maximum members are 552, directly elected by the people from territorial constituents. In the case the Anglo-Indian community is not adequately represented, the president can appoint two members from the community to Lok Sabha. Some seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. Tenure is 5 years. General elections held after every 5 years. Members must have completed 25 years of age to consent. Okay, very nicely explained. Now, as it is clear to all of you, let's move to the next topic, that is Rajya Sabha. Okay, so Lok Sabha is the lower and the first house of large our Sansad. Okay, yes, our parliament. Hence, Rajya Sabha is the upper and the second house of parliament. Okay, Rajya Sabha, the upper and the second house of parliament. आपल्या संसदेचं वरिष्ठ आणि द्वितीय सभागृह. ओके, जो सेकंड नंबर पे होता है वो सभागृह, वो सभा क्या कहलाता है? राज्यसभा. ओके, the members of Rajya Sabha are indirectly elected. See, Lok Sabha's members are directly elected. On the other hand, the members of Rajya Sabha are indirectly elected. Okay, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्षरित्या निवडून येतात. As the name suggests, Rajya Sabha gives representation to 29 states and 7 union territories in India. Okay, राज्यसभा, राज्यसभा म्हणजे भारतातील जे संघराज्य आहेत, भारत में जो भी संघराज्य है, कितने हैं? 29 एंड 7 क्या है? टेरिटरीज है.
7 territories like Jammu and Kashmir. Yes, 7 territories are there in India, that all are represented by राज्य सभा. ओके, वो सब कौन रिप्रेजेंट करता है? उन सबको राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है. Thus members of Rajya Sabha work as representative of the constituent states. म्हणून राज्यसभेत जे काही प्रतिनिधी असतात, राज्यसभा में जो प्रतिनिधी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? सारे जो कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स है उनके प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा में काम करते हैं. ओके, नाउ हियर इज सम इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. सी, मेरी, कैन आई कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन आफ्टर आई पास माई 10th स्टैंडर्ड? मेरी क्या कह रही है, मैं जब मैं 10th स्टैंडर्ड पास हो जाऊंगी तब मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकती हूँ क्या? राधिका, नो, यू कैन वोट आफ्टर यू अटेन 18 years ऑफ एज, बट यू कॅनॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन. राधिका काय म्हणते? नाही, जेव्हा तू 18 वर्षाची होशील तेव्हा तुला मतदान करता येईल. जब नो, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब तुम्हें वोट करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकती, परंतु इलेक्शन लढवू शकत नाही. रणवीर, don't you know that for contesting Lok Sabha elections one needs to complete 25 years of age? अरे, तुम्हाला माहित नाही का की लोकसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी वयाची 25 वर्ष पूर्ण असावी लागतात? रणवीर क्या कह रहा है, अरे तुम दोनों को पता नहीं है क्या कि अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो आपका कितना एज कंप्लीट होना चाहिए? 25 years. ओके. शबाना, what if a person from neighboring country decide to contest Lok Sabha election? शबाना काय म्हणते? जर आपल्या बाजूच्या देशातील व्यक्तीने लोकसभेची निवडणूक लढवायचे ठरवले तर काय होईल? ओके, शबाना क्या कह रही है, अगर हमारे जो भी नेबरिंग कंट्री है, हमारे बाजू वाले देश है, उन्होंने हमारी लोकसभा का इलेक्शन अगर उनको लड़ना है तो क्या होगा? मुस्कान, हाउ इज इट पॉसिबल? इज दैट पर्सन एन इंडियन सिटीजन? मुस्कान, मग मुस्कान काय म्हणते, ते कसं शक्य आहे? वो कैसे हो सकता है? वो जो जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा वो भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है. प्रणव, if I want to contest election from Kerala, is that possible? So प्रणव क्या कह रहा है, अगर मैं केरल में से इलेक्शन लड़ना चाहूँ तो क्या वो पॉसिबल है? राधिका, yes, because our teacher said that Lok Sabha election can be contested from any constituency of a particular state. तो राधिका क्या कह रही है, हाँ, तुम लड़ सकते हो, क्योंकि हमारे टीचर ने कहा है कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए उस राज्य के मतदार संघ में से सॉरी कौन से भी स्टेट के मतदार संघ में से आप इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन क्या है, आप उस देश के नागरिक होना बहुत जरूरी है. मृणाल, I understood conditions regarding the age and nationality, but who can be considered as non-qualified for contesting elections? मग मृणाल काय म्हणते, ओके, वय आणि नागरिकत्व यांच्या संबंधीच्या निवडणूक लढवण्याच्या अटी तर मला समजल्या, पण असं पण काही असू शकेल की ज्याच्याने जो उमेदवार आहे तो नॉन क्वालिफाईड होईल, अपात्र होईल. मेरी, like the criteria for qualification, there are conditions for disqualifications as well. Let us understand with the help of our teacher. मग मेरी काय म्हणते, पात्रतेप्रमाणेच अपात्रतेच्या देखील काही अटी आहेत, आपण आपल्या शिक्षकांकडून समजून घेऊया, म्हणजे आपल्याला या लेसन मध्ये पुढे हे सगळं दिलेलं असणार आहे. ओके, लेट्स सी. The total membership of Rajya Sabha is 250 members. Among them, 238 members are elected from the constituent state and union territories. बघा, राज्यसभेची एकूण सदस्य संख्या किती आहे? 250. त्यापैकी 238 सदस्य हे विविध घटक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येत असतात. ओके, राज्यसभा का मेंबरशिप कितना होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 250 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं
और उसमें से जो 238 है, 238 मेंबर्स है, वो अलग अलग घटक राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें से चुने जाते हैं. ओके. All the constituent states do not get equal representation in Rajya Sabha. सी, राज्यसभेत प्रत्येक घटक राज्यांची सदस्य संख्या ही सारखी नसते. अलग अलग घटक राज्य से अलग अलग सदस्य चुने जा सकते हैं, समान संख्या नहीं होती उनकी. It is it is proportionate to the total population of each of the state. कसा proportion असतं? लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांच्या राज्यसभेत प्रतिनिधित्व असते. ओके. लोकसंख्येचं प्रमाण किती आहे, कितनी वहां पे पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से राज्यसभा में प्रतिनिधि चुने जाते हैं. ओके. उस स्टेट से. नेक्स्ट, remaining 12 members are appointed by the president. Okay, so 238 members are elected from the all constituents, right? घटक राज्यामधून 238 मेंबर सिलेक्ट केले जातात. मग उरलेल्या 12 सदस्यांचं काय? जो रिमेनिंग 12 मेंबर्स है उनका क्या, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. These members are usually experienced and distinguished personalities from the fields of literature, arts, science, sports and social work. मग हे काही 12 सदस्य आहेत. ये जो 12 सदस्य है जिनको कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है. वो कौन कौन से क्षेत्र में से पाए जाते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीड़ा, सामाजिक कार्य. इन सारे क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, जिनको इन सारे क्षेत्रों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसका नॉलेज है, उन व्यक्तियों में से किन्हीं को राज्यसभा में चुना जाता है. The members of Rajya Sabha are elected through the system of proportional representation. ओके. राज्यसभेचे जे सदस्य आहेत त्याची निवड प्रमाणशीट प्रतिनिधित्व पद्धतीने होते. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के हिसाब से राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं. राज्यसभा is never dissolved completely, hence it is called a permanent house. बघा, राज्यसभा कधीही एकत्रितपणे विसर्जित होत नाही, म्हणून ते कायमस्वरूपी सभागृह मानले जाते. राज्यसभा कभी भी एक साथ विसर्जित नहीं होती, खालसा नहीं होती, खत्म नहीं होती, इसलिए उसको परमानेंट हाउस कहा जाता है. ओके. 1/3 member of total membership of Rajya Sabha who have completed their tenure of 6 years retire after every 2 years and equal number of new members get elected. बघा, पूर्णपणे खालसा होत नाही, पूर्णपणे विसर्जित होत नाही. याचा अर्थ काय? दर 2 वर्षांनी राज्यसभेतील 6 वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलेले 1/3 सदस्य निवृत्त होतात. ओके. रिटायर होतात आणि पुन्हा तितक्याच सभासदांची निवड केली जाते. ओके. हर 2 साल क्या होता है? जिनका राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है वो सदस्य रिटायर हो जाते हैं और जो जितने रिटायर हुए हैं उतने फिर से इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं. इसलिए राज्यसभा को कायम स्वरूपी सभागृह माना गया है. Because the limited members of Rajya Sabha retire step by step, Rajya Sabha can function continuously. Any person contesting for the election of Rajya Sabha must be an Indian citizen and he must have completed 30 years of age. Okay, बघा, टप्प्याटप्प्याने काय होतं? राज्यसभेत मोजक्याच संख्येने सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढे सदस्य निवडले देखील जातात. त्यामुळे काय होते? राज्यसभा ही सतत कार्यरत असते. राज्यसभेची निवडणूक लढवणारी व्यक्ती ही भारतीय असली पाहिजे आणि तिचे वय किती पूर्ण असले पाहिजे? 30 वर्ष. ओके. राज्यसभा को परमानेंट सभागृह क्यों कहा गया है? क्योंकि जितने सदस्य निवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उतने ही फिर से चुने जाते हैं. इस हिसाब से क्या होता है? राज्यसभा का जो कामकाज है वो हरदम चालू ही रहता है. सो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए जो व्यक्ति इच्छुक है वो भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है और उसका एज 30 इयर्स पूरा होना जरूरी है. ओके.
Members of Lok Sabha and Rajya Sabha are known as members of parliament. ओके, लोकसभा आणि राज्यसभाच्या सदस्यांना खासदार म्हणतात. एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम कहते हैं ना ये हमारा एमपी है. ओके, ये हमारे यहाँ का एमपी है, इस तरह से हम बात करते हैं. हा इथला खासदार आहे असं आपण म्हणतो. मग तो कोण असतो? लोकसभेचा किंवा राज्यसभेचा सदस्य असतो. वो कौन होता है? लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होता है, जिसको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. MPs try to resolve the queries and complaints of their constituencies by raising question in the parliament. तो इन एमपी का खासदारचं काम काय असतं? त्याचा जो मतदारसंघ आहे, ज्या मतदारसंघातून तो निवडून आला आहे, त्या मतदारसंघाचे प्रश्न, समस्या लोकसभेत मांडणे आणि ते प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न. Government allocates them funds to carry out development activities in their respective constituencies. मग मतदारसंघाच्या विकास कामासाठी त्यांना विकास निधी सुद्धा शासनच देत असतं. बघा क्या होता है, ये जो एमपीज होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर कहलाते हैं. वो क्या कहते करते हैं, जिन जिन मतदार संघ में चुना गया है उन मतदार संघ के जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं है, उनको वो लोकसभा में सबके सामने रखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और वो सॉल्व करने के लिए जो भी पैसा लगता है, जो भी निधि लगता है, वो सारा पैसा शासन द्वारा उन एमपीज को दिया जाता है. ओके, functions of parliament. After understanding the basics of Lok Sabha and Rajya Sabha, we will now review their function. Okay, clearly understood about Rajya Sabha now? Have you clearly understood about Rajya Sabha? Tell me. Yes. Okay. Now, अभी उनका क्या कामकाज है? ओके, संसदेची कामं काय असतात ते आपण पाहणार आहोत. उनके क्या फंक्शन्स है that we are going to study. फर्स्ट इज फॉर्म्युलेशन ऑफ लॉज, कायद्याची निर्मिती करणे, लॉज बनाना. फॉर्म्युलेशन ऑफ लॉज. In order to achieve welfare of the people and the objective of the constitution, the parliament has to formulate new laws. सी, लोकांचं हित आणि त्यांचे कल्याण साध्य व्हावे आणि संविधानातील उद्दिष्टांना प्रत्यक्षात आणता यावे म्हणून संसदेला नवीन नवीन कायद्यांची निर्मिती करावी लागते. ओके, सी, लोगों का हित और उनका जो भी कल्याण है, उनकी जो प्रोग्रेस है वो होनी चाहिए. और जो भी संविधान में हमारे जो उद्दिष्ट दिए गए हैं वो प्रत्यक्ष में लोगों को साध्य करवाने के लिए हमारी जो संसद है वो नए नए रूल्स लॉज की निर्मिती करती रहती है. ओके, पार्लियामेंट ऑल्सो आउटडेटेड लॉज आर रिपेल्ड, नेसेसरी चेंजेस आर मेड इन सम लॉज. आणि जे काही आउटडेटेड कालबाह्य झालेले कायदे आहेत त्यांना रद्द करतात, संसद त्यांना रद्द करू शकते आणि काही कायद्यात योग्य ते बदल सुद्धा करू शकते. ओके, जो भी आउटडेटेड लॉज है उनको संसद खालसा कर सकती है, खत्म कर सकती है. और जो कुछ लॉज है अगर उनमें चेंजेस करना जरूरी है तो वो चेंजेस भी संसद कर सकती है या फिर करती है. The process of formulation of laws has been described in the Constitution. In accordance to the procedure, the Parliament fulfills their primary and important responsibility. बघा, मग कायद्याच्या निर्मितीची ही जी काही प्रक्रिया आहे ती संविधानाने स्पष्ट केलेली आहे. जो भी लॉज निर्मिती की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन की गई है. उसके अनुसार संसद क्या करती है, खुद की प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की प्राथमिक और प्रमुख जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करती है. ओके, नेक्स्ट काम क्या है संसद का, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जे काही मंत्रिमंडळ आहे, मिनिस्टर का जो काउंसिल है, मिनिस्टर्स का जो काउंसिल है, अभी लास्ट मंथ ही हमारा जो मिनिस्ट्री है वो पूरा चेंज हो चुका है, अगर आपको पता है तो. यस, सो उस मिनिस्ट्री पे कंट्रोल करना भी जरूरी है, इसलिए वो कौन काम करते हैं, संसद.
The Prime Minister and the Council of Ministers are drawn from the Parliament and Parliament exercises control over them. प्रधानमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ संसदेतूनच निर्माण होते आणि संसदेचे त्यांच्यावर नियंत्रण असते. जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और उनको सहायता करने के लिए जो भी मंत्री चुने गए हैं, जो भी मंत्रिमंडल है, वो कौन निर्माण करता है, कौन चुनता है? हमारी संसद। और हमारी संसद खुद उन पर कंट्रोल भी रखती है. There are multiple ways through which this control can be exercised. It is the responsibility of the Parliament to see that the Council of Ministers does not discard the Parliament and functions under its supervision. Okay. मग नियंत्रणाचे विविध मार्ग संसदेला उपलब्ध असतात. संसद बहुत सारे तरीकों से प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों पर कंट्रोल कर सकती है. ओके. संसदेला डावलून मंत्रिमंडळ कारभार करणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संसदेवर असते. और संसद को अवॉइड करके जो भी मंत्रिमंडल है, जो भी प्रधानमंत्री है, वो खुद का काम नहीं करेंगे, ये कंट्रोल रखना भी संसद के अंडर ही होता है. ओके. अंडरस्टूड टिलिया? अंडरस्टूड टिलिया? Okay. Now, amendment to the constitutions. Okay, amendment to the constitutions. संविधान दुरुस्ती. नेक्स्ट फंक्शन क्या है? संविधान में कुछ चेंजेस करना. The parliament decides whether to make any amendment to the Indian constitution. Okay, भारताच्या संविधानात काही बदल करायचे असल्यास ते त्याबद्दलचे निर्णय कौन घेत असते? संसद घेत असते. ओके. अगर हमारे संविधान में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो डिसाइड कौन करता है? संसद करता है. पार्लियामेंट डिसाइड करती है. द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टंट बिल. संविधान दुरुस्ती करायचा प्रस्ताव महत्वाचा असतो. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करने वाला जो बिल पास होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. The parliament discusses why the amendment is required and decides whether to accept it or not. बघा, आवश्यकतेनुसार संसद चर्चा करून तो प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही हे ठरवते. ओके. अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं तो वो प्रस्ताव जब सामने आता है तो संसद क्या करती है? पार्लियामेंट पे क्या करती है? उस पे सोचती है कि ये प्रस्ताव जो आया है वो हम आगे लेके जाए या नहीं. ओके. The constitution mentions various ways of amending the constitution. They are as follows. Few provisions in the Indian constitution are amended by simple majority of the parliament. Some provisions require special majority, that is 2/3 of the parliament. Few other provisions are amended by special majority plus contest from more than half of the constituent state. See. मग भारताच्या संविधानात जर दुरुस्ती करायची असेल तर त्याच्यासाठी काही पद्धती आहेत. पहिला, भारताच्या संविधानातील काही तरतुदी संसदेच्या साध्या बहुमताने बदलल्या जातात. ओके. जो भी चेंजेस करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए संसद में पार्लियामेंट में क्या लिया जाता है? वोट लिया जाता है. ओके. जो ज्यादा मेजोरिटी जहां पे जाती है उसको, अगर मेजोरिटी चेंजेस में जा रही है तो चेंजेस की जाते हैं, अदरवाइज वो चेंज नहीं किया जाता. काही तरतुदींना मात्र संसदेच्या विशेष बहुमताची 2/3 गरज असते. लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर होती है. लाइक 2/3. अगर 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट is going for option B, then the option B is selected. It may be changes is done, change is required or change is not required. Okay. It may be anything. अगर 2/3 पॉपुलेशन, अगर 2/3 मेंबर है संसद में से वो कोई वो जो चीज सिलेक्ट करते हैं वो की जाती है. Few other provisions are amended by special majority plus contest from more than half of the constituent state. आणि काही तरतुदी अशा असतात जिथे
संसदेचं विशेष बहुमत अधिक आणि निम्म्यापेक्षा अधिक घटक राज्यांच्या मान्यतेने बदलल्या जातात. कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस आधे से ज्यादा अगर उसको वोट मिल रहे हैं तो ही चेंज किया जाता है. ओके, अंडरस्टूड अबाउट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट. स्पीकर ऑफ लोकसभा. स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभेचा अध्यक्ष. In the very first meeting after the elections of Lok Sabha, the members of Lok Sabha elect a speaker and deputy speaker. Lok Sabha functions under the guidance and control of the speaker. आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो तो वहां पे पार्लमेंट जब दिखाई जाती है, जेव्हा पार्लमेंटचा कारभार दाखवला जातो तेव्हा तिथे एक स्पीकर असतो माईकवर बोलताना. येस, इफ यू हॅव सीन. सी, लोकसभेच्या जेव्हा निवडणुका होतात तेव्हा त्या झाल्यानंतर पहिल्या बैठकीतच काय केलं जातं, लोकसभेचे सदस्य आहेत ते आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करतात. ओके, आणि एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात. आणि लोकसभेचे जे काही कामकाज आहे ते लोकसभा अध्यक्षाच्या मार्गदर्शनानुसार आणि नियंत्रणाखाली चालत असतं. देखिए, जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है तब क्या किया जाता है, उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होती है उस फर्स्ट मीटिंग में लोकसभा के जो सदस्य है, जो मेंबर है, वो क्या करते हैं, एक स्पीकर एंड एक डेप्यूटी स्पीकर सिलेक्ट करते हैं. और वो जो डेप्यूटी स्पीकर है, जो स्पीकर है वो क्या करता है, लोकसभा का जो भी कुछ फंक्शंस है, ओके, वो उसके गाइडेंस के अनुसार और उसके कंट्रोल में चलता है. लोकसभा रिप्रेझेंट द सिटीजन एंड द स्पीकर रिप्रेझेंट द लोकसभा. लोकसभा भारतीय जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असते आणि अध्यक्ष काय करतो, लोकसभेचे प्रतिनिधित्व करत असतो. ओके, हमारी जो लोकसभा है वो हमारे जो भारतीय सिटीजन है, नागरिक है, उनको रिप्रेजेंट करती है. और जो स्पीकर है वो क्या करता है, लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है. After getting elected as a speaker, he or she has to conduct the business of the house in an unbiased manner. See, अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, स्पीकर चुना जाता है, तब वो अध्यक्ष पूरे सभागृह का कामकाज किस प्रकार चलाता है, अनबायास मतलब निपक्षपाती. ओके, किसी भी एक पक्ष की साथ न देते हुए अनबायस मैनर से, अनबायस पद्धति से वो अपना कारभार करता है, कामकाज करता है. लोकसभा मेंबर्स हैव सम राइट्स एंड privileges as the representative of the people. These are taken care by the speaker. Apart from this, the speaker has to maintain the decorum and dignity of the house as well as interpret the rules of daily functioning of the house and work accordingly. बघा, लोकसभेच्या सभासदांना लोकप्रतिनिधी या नात्याने काही हक्क आणि विशेषाधिकार असतात. त्यांची जपणूक कोण करतो, अध्यक्ष करतो. सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालवणे, सभागृहाची प्रतिष्ठा राखणे, कामकाज विषयक नियमांचा अर्थ लावून त्यानुसार ते चालवणे इत्यादी कामे अध्यक्षांना करावी लागतात. जो भी लोकसभा का स्पीकर है, अध्यक्ष है, जब वो सिलेक्ट होता है तो जो भी लोक प्रतिनिधि चुने जाते हैं हमारी पार्लियामेंट में, संसद में, उनके कुछ हक्क होते हैं, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं. उन अधिकारों को मेंटेन रखना, ओके, और लोकसभा में डिग्निटी कायम रखना, ये सारे कामकाज किसके होते हैं, लोक प्रतिनिधि के होते हैं. नाउ द चेअरमॅन ऑफ राज्यसभा. आता राज्यसभेच्या सभापती बद्दल पाहूया आपण. The chairman exercises a control over the functioning of Rajya Sabha. The vice president is ex officio chairman of Rajya Sabha. The functions of Rajya Sabha chairman also include maintaining the discipline in the house, facilitating discussions, giving members a chance to speak, etc.
आता राज्यसभेचे सभापती काय करतात बघा. राज्यसभेचे संपूर्ण कामकाज सभापतींच्या नियंत्रणाखाली चालवले जाते. भारताचे उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. राज्यसभा सभापतींनाही सभागृहात शिस्त राखणे, चर्चा घडवून आणणे, सदस्यांना बोलण्याची संधी देणे इत्यादी कार्य करावे लागतात. जो राज्यसभा के सभापती होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य करते हैं वो जो भी राज्यसभा का कामकाज है वो उनके अंडर कंट्रोल होता है. ओके. तो हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो हमारी राज्यसभा के पदसिद्ध सभापति माने जाते हैं. राज्यसभा सभापति क्या करते हैं, सभागृह में डिसिप्लिन मेंटेन करना, जो भी डिस्कशन है वो कैरी आउट करना, जो भी सदस्य है उनको बोलने का मौका देना, ये सारे काम राज्यसभा के सभापति मतलब हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं. ओके. नेक्स्ट, अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, have you understood till here? Okay. How does the parliament make laws? आता संसद आहे आपली, ती कायदे कसे तयार करते, लॉज कसे तयार करते ते पाहूया आपण. In our country, the parliament is empowered to make laws. To formulate them, a certain system has been adopted. This system is known as the law making process. A rough draft of the law is prepared initially. This draft or outline is known as draft proposal of the law or bill of the law. बघा, आपल्या देशात संसदेला कार्य करण्याचा अधिकार आहे आणि हा कायदा करण्यासाठी विशिष्ट पद्धत देखील वापरण्यात येते. त्या पद्धतीला काय म्हणतात, कायदा निर्मितीची प्रक्रिया म्हणतात. प्रथम काय केलं जातं, कायद्याचा कच्चा मसुदा म्हणजेच एक ड्राफ्ट तयार केला जातो आणि या कच्च्या ड्राफ्टला किंवा आराखड्याला कायद्याचा प्रस्ताव किंवा विधेयक असं म्हटलं जातं. ओके. सी, पार्लियामेंट, जो भी हमारी पार्लियामेंट है उसको लॉज बनाने का अधिकार है. सो वो लॉज बनाने के लिए कुछ विशिष्ट पद्धति यूज की जाती है. उस पद्धति को क्या कहा जाता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस. ओके. सो कोई भी लॉ बनाने से पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है. यस, उस ड्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं, लॉ proposal of the law या फिर bill of the law. There are two types of bills that are primarily introduced in house of the parliament, money bill, ordinary bill. बघा, संसदेच्या सभागृहात सादर केली जाणारी दोन विधेयके आहेत मुख्यतः प्रकारची, अर्थ विधेयक आणि सर्वसाधारण विधेयक. ओके. टू टाइप्स ऑफ bills are made. First is money bill and next is ordinary bill. In order to be converted into an Miss, you are mute. Parth, stop playing with your screen. You have muted me. Okay, stop playing with your screen. Yes, Mansi, since what time I have been muted? Miss, for 5-3 seconds only. Okay, so it's fine. Please stop playing with your screen. Parth, you have muted me, so please stop doing that. See, अगर कोई भी बिल लॉ के लिए प्रोसेस हो रहा है तो उसको 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. फर्स्ट रीडिंग, देन सेकेंड रीडिंग एंड द थर्ड रीडिंग. लेट्स स्टार्ट विद इट. First reading. The minister of the concerned department or ministry or member of the parliament presents the bill.
and briefly explain its structure while representing it. This is called the first reading. बघा, फर्स्ट रीडिंग म्हणजे पहिलं वाचन. यामध्ये काय होतं, त्या संबंधित खात्याचा मंत्री किंवा संसद सदस्य विधेयक सादर करतो आणि ते विधेयक मांडताना त्याचे स्वरूप थोडक्यात स्पष्ट करतो. यास विधेयकाचे पहिले वाचन असे म्हणतात. फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, अगर फूड रिलेटेड कोई लॉ बनना है, ओके, तो फूड डिपार्टमेंट का जो भी मिनिस्टर है, ओके, वो क्या करेगा, जो विधेयक है उसको सबके सामने रखेगा और उस विधेयक को थरली एक्सप्लेन करेगा. ओके, उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट रीडिंग. नाउ सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, देर आर टू स्टेजेस ऑफ सेकंड रीडिंग. सेकंड रीडिंगला आपण दुसरं वाचन म्हणणार. देर आर टू स्टेजेस ऑफ सेकंड रीडिंग. In the first stage, the objective of the proposed bill are discussed and member in the house express their opinion on it. Okay. दोन स्टेजेस असतात, दो स्टेजेस होते हैं सेकेंड रीडिंग में. क्या है पहली स्टेज, जो भी लॉ बनना है, जो भी बिल है उसका लॉ बनना है, उस बिल के ऊपर डिस्कशन किया जाता है. ओके, और जो भी मेंबर्स है पार्लियामेंट में वो क्या करते हैं, अपना खुद का ओपिनियन देते हैं उस डिस्कशन के ऊपर, उस बिल के ऊपर अपना खुद का ओपिनियन देते हैं. Okay, the supporters of the bill gave favorable opinion while the opponent discussed the defects and fault in the bill. Yes, obviously, what will happen in that? जो सपोर्टर है, जो भी सपोर्टर्स है बिल्स के, वो क्या करते हैं, वो सदस्य क्या करते हैं, जो सपोर्टिंग मेंबर है वो क्या करते हैं, उस बिल को सपोर्ट करते हैं, उसके एडवांटेजेस बताते हैं. लेकिन जो अपोनेंट मेंबर है वो क्या करते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस बताते हैं, डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं. After the discussion within the house, as per the requirement, the bill is sent to a committee of the house. Okay, आता सभागृहात विधेयकावर चर्चा झाली आणि त्यानंतर अजून गरज भासली तर ते विधेयक सभागृहाच्या एका समितीकडे पाठवले जाते. ओके, अगर उस पे डिस्कशन खत्म हो गया इन द हाउस, पार्लियामेंट में उस पे डिस्कशन खत्म हो गया, तो वो फिर भी अगर रिक्वायर है और डिस्कशन, तो उस बिल को कहाँ भेजा जाता है, कमिटी में भेजा जाता है. द कमिटी रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिकमेंडेशन is sent to the house in order to make the bill flawless. Okay, विधेयक निर्दोष व्हावे म्हणून सूचना आणि दुरुस्त्या सुचवणारा अहवाल समिती सभागृहाकडे पाठवते. तो कमिटी क्या करती है, जो भी बिल पास होना है उसको निर्दोष बयान करने के लिए वो क्या करती है, उसमें कुछ चेंजेस करती है, कुछ रिकमेंडेशन देती है या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है, so as to make the bill flawless. Now the second phase of the second reading begins. In this phase, the bill is discussed clause by clause. Members can suggest changes after this voting is taken in the house. आता दुसऱ्या वाचनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात काय होतं बघा, या टप्प्यात विधेयकावर कलमवार चर्चा होते, सदस्य दुरुस्त्या सुचवू शकतात आणि त्यानंतर त्यावर सभागृहात मतदान घेतले जाते. क्या होता है इसमें, क्लॉज बाय क्लॉज उस पर डिस्कशन किया जाता है. अगर कुछ चेंजेस है तो मेंबर्स उसमें चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस है ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं. एंड आफ्टर दिस ऑल हैपन्स, क्या किया जाता है, सभागृह में उसके ऊपर वोट लिया जाता है. ओके, नेक्स्ट द थर्ड रीडिंग. Third reading, the bill is discussed briefly again. During the third reading, voting is taken for approving the bill. इसमें क्या होता है थर्ड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग के टाइम क्या होता है, उस बिल पे फिर से थोड़ी सी चर्चा की जाती है, डिस्कशन किया जाता है और वो बिल पास होना है, अप्रूव होना है, इसलिए वोटिंग ली जाती है, वोट किया जाता है. इफ द बिल गेट्स एन एक्सेंट बाय द रिक्वायर्ड majority, then the bill is considered as passed by the house. आता जर त्या बिलाला बहुमत मिळालं, मेजॉरिटी वोट मिल गए हैं अगर उस बिल को, तो वो बिल क्या किया जाता है, पास किया जाता है. ओके, आता त्या बिलाला जर बहुमताची मंजुरी मिळाली तर सभागृहाने ते बिल, ते विधेयक मंजूर केलं असं मानलं जातं. The bill undergoes the same procedure even in the other house. After getting an approval by both the houses, the bill is further sent for assent by the president. आता संसदेच्या दुसऱ्या सभागृहात देखील
या विधेयकावर तेवढ्याच प्रक्रिया केल्या जातात. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहातून हे बिल पास होतं आणि त्याच्यावर सारख्याच प्रक्रिया केल्या जातात आणि नंतर ते कोणाकडे पाठवलं जातं? प्रेसिडेंटकडे, राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवलं जातं. If there occurs a difference of opinion between Lok Sabha and Rajya Sabha over a specific bill, the future of this bill is decided in joint meeting of both the houses. बघा, आता काय जर लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्यात त्या बिलाबद्दल मतभेद असतील, अगर लोकसभा उस बिल के बारे में अच्छा बोल रही है लेकिन राज्यसभा उसके डिसएडवांटेजेस बता रही है, उस बिल के बारे में अच्छा मत नहीं दे रही है, तब क्या होता है? जॉइंट मीटिंग ली जाती है, बोथ हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा की जॉइंट मीटिंग ली जाती है और उसमें से जो डिस्कशन निकलेगा उसके ऊपर उस बिल का फ्यूचर डिसाइड होता है. It has to be passed or it has to be unpassed. Okay, after the final assent and the signature of the president, the bill is converted into the law and the law is made. मग जेव्हा सगळी प्रोसेस होऊन राष्ट्रपती त्या बिलवर स्वतःची संमती दाखवून सही करतात, सिग्नेचर करतात, तेव्हा त्या बिलचं रूपांतर कायद्यामध्ये होतं. ओके, अगर उस बिल को पूरे प्रोसेस से पास होके अगर मेजोरिटी वोट मिलके राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने अप्रूव किया है तो वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है एंड विद द help of president signature that bill is converted into a law. Okay, every year in the month of February the finance minister presents the national budget to the Lok Sabha. हर ईयर के फरवरी महीने में क्या होता है? जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, अर्थ मंत्री है, वो क्या करता है? नेशनल बजट लोकसभा को सादर करता है. द स्टेट लेजिस्लेचर also follow the same procedure of law making as in the parliament. The bill passed by the state legislature can become a law only after it receive the assent of the governor. बघा, राज्याच्या विधिमंडळात देखील कायदे करताना संसदेसारखीच पद्धत स्वीकारली जाते. राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांची संमती दर्शक स्वाक्षरी झाली की विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते. ओके, understood clearly? Here we have completed our whole lesson. What we have learned now about Rajya Sabha and their functions. Okay, Lok Sabha and Rajya Sabha and their functions, how president and chairman performs their functions, that whole we have learned about. Okay, understood clearly? Everyone, have you understood? Many of the students have left, only 3 are present, right? Okay, now should I ask you the question? Yes, shall we take the questions now? Okay, just take a quick review. Do you have your textbooks with you? Do you have your textbooks with you? Okay, so just take a quick review in 5 minutes. एकदा 5 minutes मध्ये lesson पाहून घ्या so that we can start with your question answers. After completing, let me know in the chat box so that we can start with your question answer.
Okay, Mansi has done. Nidhi and Hariom. Nidhi also done. Okay. So should I start with the question answers? Hariom, have you done revising the lesson? Okay. Please do it. Okay. Okay. So let's start. First question is complete the following sentences by choosing the correct option. First, candidates to the Lok Sabha are elected through territorial constituencies, religious constituencies, local bodies, proportional representation system. Yes, Nidhi? Yes, ma'am. The candidates to the Lok Sabha are elected through territorial constituents. Yes, constituencies. Yes. Number second, India's dash dash is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. President, Vice President, Prime Minister, Chief Justice. Mansi? Yes. India's vice president is the official chairman of the Rajya Sabha. Okay, good. Next. Question number two. Find and write. Members of Lok Sabha and Rajya Sabha are known as. Yes. Hariom, if you want to answer, you can raise your hand. Okay. Yes, Nidhi. Yes, ma'am. The members of Lok Sabha and Rajya Sabha are known as Members of Parliament MPs. Okay, MPs. Next one. The responsibility of making laws is with the executive. Sorry. The responsibility of making laws is with dash dash. Mansi. The responsibility of making laws is with parliamentary. Okay. Anyone else? Ma'am, can I read? Yes. Parliament. Question number three. Explain the following statement with reason. Rajya Sabha is a permanent house. Yes, who will answer this? Rajya Sabha is a permanent house. Okay, Nidhi. Yes, ma'am. Rajya Sabha is a permanent house. The tenure of the members of the Rajya Sabha does not get over at the same time. 1/3 of the total members retire after every 2 years. None of the members get elected because the limited members of the Rajya Sabha retire step by step. It can function continuously. Since Rajya Sabha it is called a permanent. Permanent house. Okay, good. Next. Lok Sabha is known as the first house. Mansi. The Lok Sabha is the lower and the first house of the Parliament of India. Lok Sabha is the House of Representatives directly elected by the people. Hence, the Lok Sabha is called the first house. Okay, good. Now, question number four. Answer the following in 25 to 30 words. How are members of Lok Sabha elected? Nidhi, will you? Yes, ma'am. As per the constitution, there can be maximum of 552 members in a Lok Sabha. General elections to Lok Sabha are held after every 5 years and members are directly elected by people. To ensure equal representation to all sections of community, some seats are reserved for members belonging to scheduled caste and scheduled
tribal tribes Tribes. type in case there are no representation from the Anglo-Indian community, the president can appoint two members from this community to the Lok Sabha. Thus, Lok Sabha is the representative body of the citizen of India. Okay. Next is explain the function of the Speaker of Lok Sabha. Yes, Mansi. Lok Sabha represents the citizen and the speaker represents the Lok Sabha. After getting elected as speaker, he or she has to conduct the business of the house in an unbiased manner. Lok Sabha members have some rights and privileges as the representatives of the people. These are these are taken care by the speaker. Apart from this, the speaker has to maintain the decorum and dignity of the house as well as interrupt the rules of daily functioning of the house and work accordingly. Good. Next is explain the steps involved in the lawmaking process. We just now did that. Okay, Nidhi. Yes, ma'am. The bill undergoes following process in order to be converted into a law act. First reading. The Minister of the Concerned Department Ministry or members of the Parliament present the bill in the House. The objectives and the structure of the bill are mentioned. Second reading. The positive and negative points of the bill are discussed. The defects and faults in the bill are stressed. After removing the defects and the faults, the bill is put to vote committee stage. Sometimes, if required, the bill is sent to the committee of the House. The bill is discussed in the committee in detail. The in, instruction and recommendation is to the House. The bill is discussed clause by clause and then voted to the third reading. Was again discussed in the House. Voting is approving the bill. Approval of the other House. The bill has to undergo the same producer event in the other House. Bill is approved by majority. Assigned by President. After getting an approval from both the House, the bill is further sent for assent by President. After the final assent and signature of the President, the bill is converted into the law. Okay, good. Okay, so we have done with your our question answers also. Will you write? Can you write them as your homework? Yes. Okay. So I'll be uploading these questions, or I will be just writing. Okay, Mansi. Yes. Teacher, at 20th July, you have uploaded the homework in the classroom that learn the question answers of lesson number 4, history. So that what we have to attach in that homework. Do not attach anything. You just have to learn that. Okay. No writing. Whenever I will mention write, there only you have to attach. Okay. So we are going to stop over here for today. Do you have any doubt regarding this, or else you have cleared everything? Okay. Okay. So you can leave now. Bye bye everyone. Do your homework. Bye bye. Bye, Miss. Thank you, Miss. Bye bye. Welcome. Hi, ma'am. Thank you. Welcome. Bye.